Hello and welcome to all of you in my YouTube channel Physics Cafe by Manjeet Kaur. So dear student, in this class we will study about class 12 physics Ampere's circuital law. So dear student, in this class we will study about its definition, then its proofs for circular path and then for arbitrary path by using long straight conductor. Then we do its applications also. So let's start. First we have to write the definition of Ampere's circuital law. So it states that the line integral of magnetic field that is B vector around any closed path is equals to mu naught, that is epsilon naught, absolute permeability of free space times the total current that is I threading the closed circuit. डैट मीन्स हमारे पास कोई क्लोज पाथ है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसका लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड का वो इक्वल होगा म्यू नॉट टाइम्स उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है. मैथमेटिकली वी कैन राइट इट्स डेफिनेशन. Circle integral of B vector dot dl vector is equals to mu naught times the current flowing in this circuit. That means line integral किसका कर रहे हैं हम? That is our magnetic field. Any closed path, this is closed path, is equals to mu naught times that current flow in this circuit. mu naught time जो उस circuit में current flow हो रहा है उसके equal होगा. So this is our mathematically form of Ampere's circuital law. Now we have to prove it for two cases, that is circular path and another is arbitrary path. Now this is the diagram for circular path. Here we have a xy straight conductor whose one end is x and another is y, and in this xy straight conductor current I is flowing from x to y. Now because of current flowing from x to y, then here magnetic field is produced in circular path. So O is the origin of this circular path and R is the radius. Here we choose small area which is dl, whose length is dl from P to Q. Now because of current flowing through this conductor, then magnetic field is produced in this. Now here we have to write, consider a circular path of radius r. Circular path of radius r. जो हमारा जो करंट है वो एक्स वाई कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से इसमें सर्कुलर पाथ एक क्रिएट हुआ है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसकी हमने रेडियस ले ली r. देन such that the current carrying conductor passes through its center. O जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है वो हमने एस को नीचे से डाला और वो ऊपर से निकल रहा है, डेट इज ओ. ओ से निकल रहा है, डेट इज अनदर एंड इज वाई. देन let
इसका हमने स्मॉल एरिया को कंसीडर करना है, तो लेट पी क्यू हुज लेंथ इज डी एल वेक्टर बी अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। हमने क्या किया, पी क्यू की लेंथ हमने डी एल ले ली जो इस सर्कुलर पाथ का स्मॉल एलिमेंट है ऑफ द सर्कुलर पाथ and B be the strength of magnetic field. B be the strength of magnetic field at point P. Now जो करंट है ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है लाइक दिस, एंड जो हमारी कर्ल्स फिंगर्स है वो सर्कुलर पाथ की डायरेक्शन को बता रही है, डैट इज अवर मैग्नेटिक फील्ड। सो जहाँ से पता चल रहा है कि जो हमारा वेक्टर्स डैट इज बी वेक्टर और डी एल जो हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है इस सर्कुलर पाथ का, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। सो हियर वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल the current flow in the upper direction, so the magnetic field at, so magnetic field at point P का क्या होगा, at point P is along the tangent to the circular path at that point. So हमें क्या मिला कि हमारा जो राइट हैंड थंब रूल है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा थंब है वो डायरेक्शन बता रहा है करंट की, एंड जो हमारी फिंगर्स कर्ल है वो डायरेक्शन बता रही है मैग्नेटिक फील्ड की। सो हैंस द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द closed circular path is given by, तो हमने क्या करना है कि मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल निकाला है, हमारे पास पाथ कौन सा है, क्लोज्ड है, वो सर्कुलर है। सो वी कैन राइट लाइन सर्कुलर इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू सर्कुलर इंटीग्रल ऑफ बी डी एल, और इनके बिटवीन एंगल कौन बन रहा है, 0 डिग्री, cos 0 डिग्री। सो वी नो cos 0 is equals to 1. So here we put the value of cos 0 degree. So we get circle integral of B dl is 1. So we get circle integral of B dl. Now this is our equation number 2 and this is our equation number 1. Now we know the magnitude of magnetic field, magnitude of magnetic field due to current carrying straight conductor is given by, तो हमें पता है कि जो हमारा मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में, उसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन r. नाउ वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन हेयर, हमने b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। सो पुट द वैल्यू of B in equation 2. So we get, हमें क्या मिला,
circle integral of b vector dot dl vector is equals to circle integral of, in place of b we can write mu naught upon 4 pi 2i upon r, then dl. So mu naught upon 4 pi 2i upon r are constant terms, so we taken it out. Mu naught upon 4 pi into 2i upon r circle integral of dl. Now we know जो circle integral dl is equals to 2 pi r, which is the circumference of the circular path, which is the circumference of the circular path. So here we can write 2 pi r. So circle integral of b vector dot dl vector is equals to mu naught upon 4 pi into 2i upon r into 2 pi r, which is the circumference of the circle. Now here we cancel r, here pi, then 2 and 2. So we get circle integral of b vector dot dl vector is equals to mu naught into I, जो कि हमारी डेफिनेशन में था. हमने क्या किया, इसको प्रूव कर दिया है फॉर सर्कुलर पाथ. इट प्रूव्स एम्पियर्स सर्कुलर लॉ. एक बार हम रिवाइज करते हैं कि हमने क्या किया. फर्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन, इज हियर वी हैव डेफिनेशन ऑफ इट. क्या कह रहा था कि लाइन इंटीग्रल, जो हमारा लाइन इंटीग्रल है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, किसी भी क्लोज पाथ के राउंड, वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट सर्किट. जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होगा उसका म्यू नॉट टाइम्स. नाउ वी हैव डन, हमने क्या किया, इसको प्रूव किया. हमने दो केसेस लेने हैं. फर्स्ट हम ले रहे हैं सर्कुलर पाथ एंड अनदर इज आर्बिट्रेरी पाथ. सो फॉर सर्कुलर पाथ हमने क्या लिया, एक हमारा कंडक्टर है दैट इज एक्स वाई कंडक्टर, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम एक्स टू वाई. बिकॉज जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया. देन जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसकी वजह से उसका जो पाथ है डैट इज सर्कुलर पाथ. देन इसका जो हमारा ओरिजिन है डैट इज ओ, हुज रेडियस इज दिस, जो हमारा जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस है आर. देन हमने इस सर्कुलर पाथ का स्मॉल एरिया ले लिया डैट इज पी क्यू, हुज लेंथ इज डी एल वेक्टर. देन हमारा जो थंब रूल है, राइट हैंड थंब रूल है, वो बताता है कि जो हमारा थंब की अपर डायरेक्शन है वो बता रही होती है करंट की डायरेक्शन को, और जो हमारी फिंगर्स कर्ल है वो डायरेक्शन बता रही होती है मैग्नेटिक फील्ड की. सो बाय यूजिंग right hand thumb rule we know the direction of dl vector and ba vector, so both are in same direction. Then तो लाइन, जो हमारा लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड का ओवर क्लोज सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय, वो क्या हो गया, cos 0 डिग्री. देन cos 0 इज 1, सो वी गेट सर्कल इंटीग्रल ऑफ b वेक्टर टू dl वेक्टर इज इक्वल्स टू सर्कल इंटीग्रल ऑफ b dl. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b. सो वी नो द मैग्नीट्यूड, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का है जिसमें कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो कितना है b, विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r. तो b की ये वाली वैल्यू है, इसको हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. सो हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया. देन हमें मिला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन r इंटू डी एल. अभी ये वाली जो होल टर्म है हमारी, दिस वन, ये पूरी कॉन्स्टेंट टर्म है, तो हमने इसको इस सर्कल इंटीग्रल से बाहर ले लिया. तो हमारे पास आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r सर्कल इंटीग्रल ऑफ डी एल. देन जो हमें पता है कि जो सर्कल इंटीग्रल डीएल है, सर्कुलर पाथ की इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है डैट इज 2 पाई आर, डैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ. तो हमने इसकी जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी 2 पाई आर. सो वी कैन राइट सर्कल इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन r इंटू 2 पाई आर. सो हियर
2 हमारा न्यूमिनेटर में है, 4 हमारा डिनोमिनेटर में है, तो हमने उनको कैंसिल कर दिया. सिमिलरली आर कैंसिल हो गया. सो वी हैव लेफ्ट circle integral of b vector to dl vector is equals to mu naught I. This is the mathematical form of our Ampere circular law. So इसको हमने प्रूव कर दिया है for circular path. Now we have to prove its second case, that is for arbitrary path. Diagram. So this is xy conductor, xy straight conductor. Here current is flow from x to y. This is our arbitrary path. So here this is point O where conductor y is passed through them. Then this is the small area we denote from A to B, that is dl vector, dl1. Then B to C is dl2, and similarly C to D, that is dl3. And this area, small area, making angle with O, that is d theta 1. Then dl2 is making angle with O is d theta 2. Similarly dl3 is making an angle with O is d theta 3. So consider any arbitrary closed path around a long straight current carrying conductor, long straight current carrying कंडक्टर. हमने क्या किया कि इस पूरा जो हमारा क्लोज पाथ है, आर्बिट्रेरी पाथ है, उसमें से हमने, जिसमें जो हमारा जो आर्बिट्रेरी पाथ है जिसमें एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर पास हो रहा है, उसमें से हमने स्मॉल एरिया कोई भी कंसीडर कर लेना है. देन कंडक्टर हमारा है एक्स वाई, करंट कैरिंग डेट इज आई. नाउ हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया स्मॉल एरिया में. डिवाइड दिस arbitrary path small in small lengths. So हमें क्या मिला, AB vector which is equals to dl1. Similarly BC vector which is equals to dl2 vector. Then CD vector is equals to dl3 vector and so on. Now अब हमने क्या करना है कि जो हमारी लेंथ है, जो स्मॉल एरिया है, वो हमारे O के साथ एंगल्स बना रहे हैं. सो उसको भी लिखते हैं. सपोज दैट these small lengths of segment subtend angles d theta 1, d theta 2, d theta 3 and so on at point O. Then we can write d theta 1 plus d theta 2 plus d theta 3 and plus so on. उनका सम किसके इक्वल होगा, डेट इज 2 पाई. नाउ अभी हमने क्या करना है कि जो हमारा जिस आर्बिट्रेरी पाथ है, ठीक है, उसका जो हमने स्मॉल एरिया लिया है, देन जो स्मॉल आर्क है ना, ये वाला पार्ट, दिस वन, ठीक है, जो कि दैट इज ए बी, ये हमारी सर्कुलर आर्क्स हैं, तो उनकी जो हमने रेडियाई है ओ से लेके ए तक, इसको हमने ले लेना है R1. सिमिलरली जो BC आर्क है उसकी हमने रेडियाई ले लेनी है OB, डेट इज R2. सिमिलरली जो CD आर्क है हमारी, उसकी हमने रेडियस ले लेनी है R3. सो वी कैन राइट सपोज डेट all the segments that is AB, BC, CD and so on are small circular arcs of radii, that is R1, R2, R3 and so on. So we can write then जो एंगल हमें मिला है d theta 1 is equals to
length upon radius. Similarly, d theta 2 is equals to dl2 upon r2. Similarly, d theta 3 is equals to dl3 upon r3 and so on. Now हमारे पास जो फॉर्मूला है कि हमारा जो हमने लॉन्ग स्टेट कंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, देन हम अभी उसके बारे में करेंगे. इफ़ v1 v2 वेक्टर v3 वेक्टर एंड सो ऑन आर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जो हमने सर्कुलर पाथ लिया ना उसका स्मॉल एलिमेंट दैट इज dl1 dl2 वेक्टर dl3 वेक्टर एंड सो ऑन. देन जो उसका लाइन इंटीग्रल होगा हमारे मैग्नेटिक फील्ड का, देन लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो किसके इक्वल होगा बच्चे? सो उसको लिखेंगे हम सर्कल इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू b1 डॉट dl1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर डॉट dl2 वेक्टर प्लस b3 वेक्टर डॉट dl3 वेक्टर एंड सो ऑन. सो हियर वी गेट b1 dl1 प्लस b2 plus dl2 plus b3 plus dl3 and so on. So we know जो हमारा b1 है वो किसके उसका फॉर्मूला क्या था? हमारा b का फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू 2i अपॉन आर. तो सिमिलरली b1 का क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 2i अपॉन r1. सिमिलरली b2 म्यू नॉट अपॉन 4 2i upon r2. Similarly for b3 in place of 2 we can write 3 mu naught upon 4 2i upon r3. So we put these values of b1, b2 and b3 here. We get circle integral of b vector dot dl vector is equals to mu naught upon 4 2i upon r1 then dl1. हमने क्या किया? b1 की प्लेस पे ये वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, देन dl1 एज इट इज. सिमिलरली b2 की प्लेस पे क्या करेंगे? म्यू नॉट अपॉन 4 2i upon r2 then dl2. Similarly mu naught upon 4 2i upon r3 then dl3 and so on. So हम इसमें से mu naught upon 4 इंटू 2i सभी में आ रहा है तो उसको हम कॉमन ले लेंगे. mu naught upon 4 इंटू 2i. तो अंदर क्या रह गया यहाँ पे? dl1 अपॉन r1 प्लस dl2 upon r2 plus dl3 upon r3 and so on. So अभी हमने क्या करना है? हमें पता है कि जो हमने इक्वेशन पहले ली थी ये वाली जिसमें हमने पहले कंसीडर कर लिया था कि जो हमारा फॉर्मूला है एंगल सबटेंडेड विद देम इज इक्वल्स टू लेंथ अपॉन रेडियस. सो इन प्लेस ऑफ dl upon r1 we can write d theta 1. So we can write here mu naught upon 4 2i. In place of dl upon r1 we can write d theta 1. So here we get d theta 1 and here d theta 2 and here d theta 3 and so on. अभी क्या करना है हमने?
हमें पता था कि जो हमने एंगल्स सब्सटेंडेड किए हैं स्मॉल सेगमेंट को लेके उनका सम किसके इक्वल है 2 पाई के इक्वल। तो हमें ये वाली यहाँ पे जो वैल्यू है इसकी जगह पे हमने 2 पाई की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो वी गेट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i इंटू 2 पाई। नाउ अगेन क्या हमारे पास न्यूमिनेटर में 2 इंटू 2 डेट इज़ 4, डिनोमिनेटर में भी 4 है तो जो कैंसलाइज हो गया। देन हियर वी हैव पाई, अगेन पाई, तो हमें क्या मिला म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट इंटू आई विच इज़ इक्वल्स टू सर्कल इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल। दिस इज द एम्पेयर सर्कुटल लॉ। इट प्रूव्स Ampere's circuital law for arbitrary path. So this is the second case. एक और रिवाइज करता है कि हमने क्या क्या किया। हमारे पास एक आर्बिट्रेरी पाथ था जिसमें से एक्स वाई एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है वो पास हो रहा है जिसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है। देन ड्यू टू फ्लोइंग ऑफ करंट इन दिस कंडक्टर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से जो उसकी जो डायरेक्शन है वो भी क्या हमारी इसी पाथ के अलोंग है। देन हमने क्या किया, जो हमारा ये आर्बिट्रेरी पाथ है उसका स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया, दैट इज ए बी जिसकी लेंथ है DL1, देन BC दैट इज DL2, देन CD दैट इज DL3। और जो हमारी जो आर्क्स हैं वो ओरिजिन के साथ कितना रेडियस बना रही है, वो एंगल सब्सटेंडेड कर रही है दैट इज d1। सिमिलरली जो DL2 है दैट इज BC वो एंगल सब्सटेंड कर रही है O के साथ d2। सिमिलरली जो हमारा स्मॉल एलिमेंट है दैट इज DL3 वो ओरिजिन के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है दैट इज d3। देन हमने क्या किया, हमने इस पूरे आर्बिट्रेरी पाथ को स्मॉल एरियाज में पार्ट डिवाइड कर दिया। देन हमें मिला AB विच इज इक्वल्स टू DL1, BC दैट इज DL2, देन CD इक्वल्स टू DL3। देन हमने क्या किया, सपोज कर लिया कि जो इसकी स्मॉल लेंथ की सेगमेंट है वो एंगल सब्सटेंड कर रही है दैट इज d1, d2 एंड d3 एट पॉइंट O। देन जो इनका सम होगा इन सभी एंगल्स का, जो हम यहाँ पे एंगल्स कंसिडर करें, इनका टोटल सम किसके इक्वल होगा दैट इज 2 पाई। नाउ सपोज किया हमने कि जो हमारे सेगमेंट्स की लेंथ है दैट इज AB BC CD उनकी जो स्मॉल आर्क्स हैं, ये उनकी सर्कुलर आर्क्स हैं, तो उनका ओरिजिन से अगर देखा जाए तो रेडियस को हमने ले लिया R1 फर्स्ट की OA। देन सिमिलरली OB इज इक्वल्स टू R2, OC इज इक्वल्स टू R3। देन वी नो जो d1 होता है वो किसके इक्वल होता है, लेंथ अपॉन R। जो हमारा एंगल है वो किसके इक्वल होता है, लेंथ अपॉन R। तो वही से हमने क्या किया कि स्मॉल एंगल इज इक्वल्स टू स्मॉल लेंथ अपॉन रेडियस। सिमिलरली d2 इज इक्वल्स टू DL2 अपॉन R2, d3 इज इक्वल्स टू DL3 अपॉन R3। नाउ इफ V1 वेक्टर V2 एंड V3 हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बता रहा है अलोंग जो हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है दैट इज DL1, DL2 एंड DL3 एंड सो ऑन। नाउ हमने मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करना है हियर, सो वी कैन राइट B वेक्टर टू DL1 प्लस B2 डो DL2 प्लस B3 प्लस इंटू DL3 एंड सो ऑन। तो हमने क्या किया, अभी उनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना है। जब हमने उनका मैग्नीट्यूड लिया तो हमारा वेक्टर हट गया, तो क्या आया हमारे पास B1 DL1 प्लस B2 DL2 प्लस B3 DL3। अभी हमने हमारी जो हमारा मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन R। बस हमने हमारी R की वैल्यू चेंज होगी, जहाँ जहाँ R है वहाँ पे R1 R2 एंड R3 आ जाएगा। तो हमने इन वैल्यूज़ को यहाँ पे अगेन सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। देन हमें मिला सर्कल इंटीग्रल ऑफ B वेक्टर टू DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन R DL1 प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन R2 इंटू DL2 प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन R3 इंटू DL3 एंड सो ऑन। तो हमने क्या किया, जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और जो हमारा 2i है इस पूरी इक्वेशन, इसमें से ये वाली जो टर्म है इसको, ये कॉन्स्टेंट टर्म है ठीक है, इसको हमने कॉमन ले लिया, जो सभी में है उसमें से हमने उसको कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा,
इसको हमने बाहर लिख लिया तो अंदर बचा dl/r1 here, similarly dl2/r2, similarly dl3/r3। नाउ हमने पहले ही कंसिडर किया था कि जो हमारी स्मॉल लेंथ अपॉन रेडियस है किसके इक्वल है, एंगल जो फॉर्म हुआ है। तो dl/r1 इज इक्वल टू d1, dl2/r2 इज इक्वल टू d2, dl3 एंड r3 इज इक्वल टू d3। सो हियर एंड हमने वो भी कंसीडर किया था कि जो एंगल्स स्मॉल एंगल्स सब्टेंड कर रहे हैं उनका सम किसके इक्वल है, 2π के। तो हमने क्या किया, 2 हमारा डिनोमिनेटर में 4 प्रेजेंट था उनके साथ कट गया, देन पाई इंटू पाई भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, सर्कल इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर टू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई विच इज द एम्पेयर सर्कुलर लॉ। So these are the two cases of our Ampere's circular law. So dear student, don't forget to subscribe this channel, like this video and share this video with your friends. Thank you for watching.